Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is computer virus. You must have heard of the term virus causing health problems. Have you heard about computer virus? Computer systems are vulnerable to many kinds of threats that can cause various types of damages resulting in significant data loss. These threats can be in the form of computer viruses. All of these threats cause not only the loss of data but also disrupt the normal functioning of the computer. It is therefore important to know about these threats. तो आपने वायरस के बारे में पढ़ा होगा जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, पर आपने क्या उस वायरस के बारे में सुना है जो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करता है? तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ये काफ़ी सारे थ्रेड्स के थ्रू ये गुजरता है, या काफ़ी हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इंटरनेट से जब हम काम करते हैं तो उसके थ्रू काफ़ी सारे वायरसेस आने के चांसेस रहते हैं. तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं वायरसेस के बारे में, कैसे इन्हें डिटेक्ट किया जाता है, फिर कैसे हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से. What is a computer virus? A computer virus is a small software program that spreads from one computer to another computer and that interferes with the computer operation. By definition, a virus is a program or set of programs that affects the normal functioning of a computer. A virus program is able to replicate itself. This means that the virus multiplies on the computer by making copies of it. It usually intended to affect a computer adversely without the user knowledge. The full form of virus is Vital Information Resource under siege. Virus programs make the computer perform undesired, unscheduled tasks. Normally, it enters through any infected storage devices like CD, pen drives, etc. Virus can also enter into a computer while surfing internet. तो वायरस होता क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है ये आपका स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करता है, स्प्रेड करता है. और जब एक बार ये आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगता है, रेप्लिकेट करने लगता है और अपनी ये काफ़ी कॉपीज़ बना लेता है और आपके कंप्यूटर में ये काफ़ी टाइम तक अवेलेबल रहता है बिना आपकी नॉलेज के. फिर धीरे धीरे क्या करता है, आपकी फाइल्स को, आपकी ऐप्स को ये धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू करता है. आपके जो कंप्यूटर एक्टिविटी है उसको भी ये अफेक्ट करना शुरू करता है. तो वायरस प्रोग्राम जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या बनाते हैं, धीरे धीरे ये उसको डल करना शुरू कर देते हैं, उसको अनडिजायर्ड, अनशेड्यूल करना ये शुरू कर देते हैं और आपके स्टोरेज डिवाइस को भी इफ़ेक्ट करना ये शुरू करते हैं. ज़्यादातर जो वायरस आते हैं आपके कंप्यूटर में वो इंटरनेट सर्फिंग के थ्रू आते हैं. Do you know the first IBM PC virus was the brain virus? It was created in Pakistan by brothers Basit and Amjad Farooq Alvi. तो जो फर्स्ट IBM PC वायरस था वो ब्रेन वायरस था और ये क्रिएट किया गया था पाकिस्तान के ब्रदर बेसेट एंड अमजद फारूक एलवी के थ्रू. Historical bite. Fred Cohen, an American computer scientist, is the inventor of computer virus defense techniques. Now, computer viruses are generally written in the same programming languages that are used to create other computer programs. Computer viruses find and attach themselves to an item in the computer system such as the startup memory area or executable files. Most viruses stay active in the computer memory until you turn off the computer. A computer virus does not infect the computer hardware such as keyboard, monitor and so on. It affects only the software. तो आपका जो कंप्यूटर वायरस है ये आपका सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा होता है जिनको आप क्रिएट करते हो अदर कंप्यूटर प्रोग्राम में. कंप्यूटर वायरस जो होते हैं ये अपना किसी भी कंप्यूटर को ढूंढता है, फिर अपने आप को क्या करता है, उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये अटैच कर लेता है और फिर ये स्टार्ट करता है एज द स्टार्टअप मेमोरी एरिया और एग्जीक्यूटेबल फाइल. ज़्यादातर आपके वायरस जो होते हैं ये एक्टिव रहते हैं आपके कंप्यूटर मेमोरी में जब तक आप उसको टर्न ऑफ नहीं कर देते. कंप्यूटर वायरस जो होता है ये आपके हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं करता जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस वगैरह है, ये बल्कि आपके सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है. Remember, it is wrong to create virus. Thousands of hours of precious time are wasted in scanning and cleaning computer virus. तो
कंप्यूटर वायरस को क्रिएट करना रॉन्ग है, गलत है। इसको डिटेक्ट करने में, इसको क्लीन करने में बहुत सारे आवर्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। What is a computer virus can do? The majority of the virus programs are harmless. Their main purpose is to irritate the computer users. After infecting a system, a virus tries to take control of the system. It tries to attach itself to another program in order to spread. This process can happen so quickly that the user is not even aware of the presence of a virus in computer. Virus programs can remain undetected and quietly inactive for a long time, waiting for a particular signal or an event to trigger them. For example, some virus program monitor the clock in the host computer and trigger on a certain day, like February the 13th. A computer virus performs the following actions. It can harm your computer by damaging programs, deleting files, or reformatting the hard drive. It infects disk by corrupting sector. The boot sector of the hard disk contains special programs that are required to start up the computer system. It can infect the executable program files like Microsoft Word and operating system programs. Some viruses simply replicate themselves or flood a network with useless data. It can infect the file before it is attached to an email message or transferred to a disk. Thus, the virus spreads from one computer to another. They can reduce computer memory, causing frequent computer crashes. तो कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या कर सकता है? मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर वायरस जो है ये हार्मलेस रहते हैं, ये आपके कंप्यूटर में रहते हैं लेकिन ये आपके कंप्यूटर को हार्म नहीं पहुंचाते। इनका बस मेन पर्पस होता है आपके कंप्यूटर में रहना और कभी कभी कंप्यूटर यूज़र को इरिटेट करना। जब ये एक सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं तो वायरस जो होता है ये दूसरे सिस्टम पे चला जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता रहता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ये क्या करता है, कन्वर्ट होता रहता है, वहाँ से ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कभी कभी बहुत क्विकली होता है, कभी कभी ये प्रोसेस बहुत लंबा टाइम लेता है और जो यूज़र होता है उसे पता नहीं चलता। कभी कभी कोई यूज़र के कंप्यूटर में वायरस जो होता है काफ़ी लंबे समय तक होता है, वो सोया हुआ रहता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है लेकिन वो इफेक्ट नहीं करता। उसको क्या दिया रहता है, एक टाइम लिमिट दी होती है कि इस टाइम पे आपको जागना है और कंप्यूटर को इफेक्ट कर रहा है। ये आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है, आपके प्रोग्राम्स को इफेक्ट करके, फाइल्स को डिलीट करके और आपकी हार्ड ड्राइव को रीफॉर्मेट करके। साथ ही साथ जो इनफैक्ट डिस्क होती है उनको भी ये करप्ट करता है और आपके जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उनको भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। कुछ वायरसेस क्या करते हैं, सिंपली अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और वो अलग अलग आपके जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाते हैं। ये इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी फाइल को बिफोर इट इज़ अटैच टू एन ईमेल। कोई भी फाइल जो होती है वो क्या होती है, अगर आप उसको मेल में भेजना चाहते हैं तो पहले उसको क्या कर लेते हैं, इन्फेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड फाइल है वो आपके मेल के थ्रू आपके फ्रेंड या दूसरे के कंप्यूटर पे भी चली जाती है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट के थ्रू। साथ ही साथ ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी को भी रिड्यूस करता है और फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैशेस को भी ये क्या करता है, जनरेट करता है। How a computer virus spreads. A virus cannot appear on a computer by itself. It enters your computer mostly through emails, instant messages and risky websites. Computer virus usually spread in one of three ways: from removable media such as floppy disk, compact disk, pen drives, etc., from files downloaded from the internet and from email attachments. Internet is the most common path for virus transmission. To protect your files, scan everything you download from the internet. अब कंप्यूटर वायरस स्प्रेड कैसे होता है, ये आपके कंप्यूटर में कैसे आता है? तो वायरस जो होता है ये खुद से आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं होता, ये एंटर होता है कोई इन्फेक्टेड मेल आपके कंप्यूटर पे आती है या कोई मैसेज आता है या कोई रिस्की वेबसाइट आप ओपन कर लेते हो तो उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। कंप्यूटर वायरस जो होता है ये 3 वेज से आपके कंप्यूटर में आता है। किसी भी रिमूवेबल मीडिया, अब चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो CD हो, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, तो इसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में आ सकता है। कोई भी फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कोई भी साइट ऑथेंटिक साइट नहीं है सपोज, और वहाँ से आपने कुछ भी डाउनलोड किया तो उसके थ्रू वायरस आने के चांसेस होते हैं। ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू भी आने के चांसेस होते हैं।
तो इंटरनेट जो है ये मेन ट्रांसमिशन माना जाता है वायरसेस का, कॉमन पाथ है ये जिसके थ्रू वायरस जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर में आते हैं। सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। A virus can cause problems in a computer in many ways, such as reduce the speed of a computer by decreasing the memory, unexplained data loss by formatting the hard disk, increasing the size of files by attaching themselves to the file, causing strange movements or patterns on the screen, sudden decrease in free space on hard disk, frequent hanging of the system, displaying unusual messages showing abnormal write protect error, displaying a change in data against the file name in the directory where a virus modifies the file, deleting or damaging file, frequent computer crashes, strange sound or music play from the speakers unexpectedly। तो सिम्टम क्या है वायरस के? अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपकी कंप्यूटर की जो आपकी स्पीड है उसको ही रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो लेकिन वो काफ़ी टाइम लेती है ओपन करने में, तो इसका मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। कभी कभी क्या होता है आपके हार्ड डिस्क में से कोई भी डेटा अचानक से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। आपने वो नहीं किया होता लेकिन कभी कभी वो अपने आप से लॉस हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज द साइज ऑफ फाइल्स, कभी कभी किसी फाइल का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड आपके जो स्ट्रेंज मूवमेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है या वो ब्लिंक करने लगती है, तो ये सब जो होते हैं ये भी वायरस के सिम्टम्स कहलाते हैं। कभी कभी आपके हार्ड डिस्क की जो फ्री स्पेस है वो डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है, आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, आपको अनयूजुअल मैसेज दिखाई देने लग जाते हैं, एरर मैसेज दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ चेंजेस आपको आपके प्रोग्राम में नज़र आने लग जाते हैं, आपकी फाइल से डिलीट और डैमेज हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्वेंट आपको कंप्यूटर क्रैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। Do you know the creeper virus was first detected on AirPanet in the early 1970? The Reaper, the first virus removed program antivirus, was the one who caught the creeper. तो क्रीपर वायरस जो थे ये पहले डिटेक्ट किए गए थे एयरपैनेट में अर्ली 1970s में। जो रीपर था वो फर्स्ट वायरस था जो रिमूव किया गया था एक एंटीवायरस के थ्रू। टाइप ऑफ वायरस। Virus can be classified by their infection target into the following types. Boot virus, the virus that infect a part of a hard disk or a floppy drive, is referred to as boot sector virus. Boot sector is a crucial part of a disk where the operating system and boot programs will be stored. This virus becomes active at the time of booting of system. These viruses are almost extinct as floppy disks are outdated now. Examples: Polyboot, B and Antrix, Disk Killer, Stoned virus, etc. Second, program file virus. Most viruses fall into this category. These viruses infect executable files, programs such as those with extension like .com, .exe, .sys, etc. These programs get loaded in the computer memory during execution. The virus becomes active in the computer memory by replicating itself and infecting files on the disk. Example: Sunday, Cascade, etc. Third, microviruses. This is a new type of virus that uses an application own microprogramming feature to distribute themselves. Unlike other viruses, microviruses do not infect programs. They infect documents such as MS Word or MS Excel and cause a sequence of actions to be performed automatically when the application is started. Example: DMV, Melissa, Word concept, etc. Other electronic infection: Trojan horses, worms and spyware, and some other terms which are associated with virus program but are actually different from virus program. तो वायरसेस भी आपके कई प्रकार के हैं। सबसे पहला इसमें है बूट वायरस। ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है आपके हार्ड डिस्क के पार्ट को और आपके फ्लॉपी ड्राइव को, ठीक है, इसलिए इसे बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। बूट सेक्टर जो है ये आपका क्रूशियल पार्ट ऑफ डिस्क माना जाता है जहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बूट प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है। लेकिन आजकल ये बूट वायरस जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है क्योंकि आजकल फ्लॉपी डिस्क जो है वो चलन में नहीं है, वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी हैं।
प्रोग्राम फाइल वायरस जो होते हैं ये आपके काफ़ी ज़्यादा फैले हुए ये वायरस होते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये आपके फाइल्स को, प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपके कंप्यूटर में लोडेड होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो इसमें आपके जो वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करते हैं। माइक्रो वायरस जो होते हैं ये आपके उस टाइप के वायरस होते हैं जो आपके एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ओन माइक्रो प्रोग्रामिंग फीचर के रूप में, फिर उसको क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे वायरस की तरह माइक्रो वायरस जो होते हैं ये किसी भी प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करते, ये बल्कि डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एक्सेट्रा। अदर इलेक्ट्रॉनिक इन्फेक्शन जो होते हैं जैसे कि आपका ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर हैं, ये भी आपके वायरस के ही अंदर आते हैं, इनके भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। Trojan horses. These viruses do not replicate themselves and are designed to perform targeted activities. It is a simple program that pretended to be a useful application, whereas it always do something destructive. A Trojan horse is a computer program that tricks the user by acting as an original file. When the user opens the file, the virus starts the program automatically and begins to infect the system. It does lots of damage to our computer every time we open and run it. ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में जान लेते हैं। ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते, ये इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं कि ये किसी एक्टिविटी को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है, ये एक अपने आप को इस तरह से रेप्लिकेट कर लेते हैं या बना लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में ओरिजिनल फाइल की तरह दिखते हैं। जब आप उस फाइल को ओपन करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये आपके पूरे जो कंप्यूटर सिस्टम है उससे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। Historical bite. The name Trojan horse come from Greek mythology. It is a tale from Trojan War about the trick the Greeks used to enter the city of Troy. तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये ग्रीक माइथोलॉजी की एक स्टोरी से लिया गया है। उसमें क्या हुआ था, जो आपके ग्रीक सोल्जर्स हुआ करते थे उन्होंने एक ट्रिक यूज़ की थी ताकि वो अपने जो दुश्मन देश है उस पर वो अटैक कर सके। उन्होंने एक हॉर्स का रेप्लिका बनाया था, बहुत बड़ा ये हॉर्स था, वुडन हॉर्स था, उसके अंदर छिप करके ये लोग उनके क्षेत्र में, उनके जगह पे ये लोग पहुंचे थे और उन पर उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। Worm. A worm is a malicious program that duplicates itself. They eventually fill up the disk space with copies of itself and thereby make a computer system to work very slow. It uses computer network and it takes advantages of security weaknesses to replicate. The worm sends its file through the cable that connects many computers. When the security is weak, the computer that is linked to the infected computer also get affected. Malware. It is made up of two words, malicious and software. It is a software that enters into a computer and damages it without the user's knowledge. Malware is a trouble-causing program. It may be a virus, worm, Trojan horse or spyware. Malware not only interrupt the normal working of a computer but also steal important information. Spyware. A spyware is a computer software that is installed secretly on a computer to gather a user's personal information without his, her knowledge or consent. These programs can change the computer's configuration or collect advertising data and personal information. Spyware can track internet searching habits and possibly redirect website activity. Spyware can also collect information about email addresses, passwords and even credit card numbers. अब वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स भी आपके मैलिशियस प्रोग्राम ही होते हैं जो अपने आप को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये आपके डिस्क स्पेस में पूरा जो स्पेस है उसको फिल कर लेते हैं और अपने आप को कॉपी ये करते रहते हैं और पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे ये धीरे धीरे फैल जाते हैं। उसके बाद ये आपके जो कंप्यूटर की वीकनेस है उसका ये फ़ायदा उठाते हैं और उसके थ्रू ये आपके कंप्यूटर को और वीक करते चले जाते हैं। मालवेयर जो होते हैं ये आपके टू वर्ड से बने हैं, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में एंटर करता है और विदाउट यूज़र नॉलेज ये उसे धीरे धीरे क्या करता रहता है, डैमेज करता रहता है। मालवेयर एक आपका ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम है।
ये एक वायरस, एक वॉर्म, एक ट्रोजन हॉर्स और एक स्पाईवेयर हो सकता है। मालवेयर जो होते हैं ये आपके नॉर्मल वर्किंग को इंटरप्ट नहीं करते, बट ये आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे ये स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में सीक्रेटली इंस्टॉल हो जाते हैं और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये गैदर करते रहते हैं धीरे धीरे विदाउट योर नॉलेज एंड कंसर्न। दीज प्रोग्राम्स जो हैं ये आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाते हैं और ये आपके एडवर्टाइजिंग डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ ये आपकी जो इंटरनेट सर्चिंग हैबिट्स हैं उनको भी ये ट्रैक करते रहते हैं। Preventing a virus infection. Protecting your computer from viruses is not a difficult task. You already know how viruses infect a computer system or how they spread. To protect your computer from viruses, keep in mind the following point. Avoid booting the computer with a floppy. If it is required to boot from a floppy, use a floppy that is virus free and write protected. Install a good antivirus software on your computer. Update your operating system and antivirus software regularly. Allow only authorized user to use your system. Use only trusted sites to download software. Do not use pirated software. Turn on the firewall of your computer operating system. Use internet and email attachments carefully. Do not open message from unknown senders. अब आप कैसे अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, आप अपने कंप्यूटर से वायरस को आप ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उन स्टेप्स को, उन फीचर्स को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कंप्यूटर को किसी भी फ्लॉपी से आप बूट करना अवॉइड करें। अगर आपको करना ही है तो आपकी फ्लॉपी जो है वो वायरस फ्री होनी चाहिए और वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। आपको गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। एंटीवायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करता है और उसे डिलीट करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप अनऑथराइज यूज़र्स को अपने सिस्टम को यूज़ करने ना दो। इसके साथ साथ कोई भी अनट्रस्टेड साइट से आपको कुछ भी चीज़ डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल को हमेशा टर्न ऑन रखना है। कुछ जो आपके ईमेल में अटैचमेंट्स आती हैं, अगर आप उस पर्सन को नहीं जानते जिसने आपको मेल भेजी है तो आप उसकी भेजी हुई अटैच फाइल को ओपन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। कोई भी अननोन सेंडर जो आपको मैसेज भेजता है उसका मैसेज आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। Do you know firewall is a combination of hardware and software which protect a private network for virus? फायरवॉल जो होता है ये आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखता है। Antivirus software refers to an application that detects the type of virus in the computer and protects against it. It is an application software designed to detect and remove the virus from the computer system. Antivirus software perform the following task in our computer. Scan the computer file to look for known viruses, matching definitions in a virus dictionary. Identify suspicious behavior from any computer program which might indicate infection. But having antivirus software in our computer does not guarantee 100% protection, as the installed antivirus program would not be able to detect new virus programs. We should keep on updating our computer with the latest version of antivirus program. Some of the popular antivirus software are Norton, Kaspersky, McAfee, AVG, Avast, Quick Heal. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपकी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो वायरस को आपके कंप्यूटर पर डिटेक्ट करती है और उसके अगेंस्ट आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जो कि आपके कंप्यूटर को पहले स्कैन करती है, फिर आपके कंप्यूटर में वायरस को ये डिटेक्ट करके उसे रिमूव करने में आपकी हेल्प करती है। ये आपके कंप्यूटर की फ़ाइल को भी स्कैन करती है, उसके फोल्डर वगैरह को भी स्कैन करती है, ठीक है। और जो भी उसको सस्पिशियस लगता है कोई फाइल या फोल्डर या कुछ भी, तो वो आपको बताती है कि इस फाइल में वायरस हो सकता है।
लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये 100% रिलायबल नहीं होते, ये आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देते, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये आपके पुराने वायरस के ऊपर बने हुए होते हैं, तो कभी कभी ये न्यू वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, फिर भी आपका जो कंप्यूटर है ये काफ़ी हद तक सेफ रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, आप इन्हें अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। Using an antivirus software. Antivirus software runs in the background of your computer, checking every file you are open. Here we are using Kaspersky antivirus because it is well known for its high detection rate. Follow the given steps to use an antivirus software. Step 1. To open Kaspersky antivirus software, click on Start All Program, Kaspersky, Kaspersky Internet Security, the Kaspersky Internet Security window open. Step 2. Click the Scan option, a new screen appears. Step 3. Select the full scan option and click Run Scan button to scan all the drives of your computer. You see the status of scanning. After the scan finishes, when no virus is found or if found and detected, a window appears displaying the message full scan completed. Step 4. Click the close button on the Kaspersky window to exit. Antivirus software needs to be updated regularly so that it can detect new viruses. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें बताया गया, समझाया गया कि कैसे आप कैस्परस्काई का जो एंटीवायरस है प्रोग्राम, इसको आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आप इसे कैसे ओपन करके आप वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देन आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, देन आप कैस्परस्काई पे जाएंगे और कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी पे आप जाएंगे। तो आपके सामने कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो आपको स्कैन करके दिखा रही होगी कि इतना % आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। फिर आपका जब फुल स्कैन हो जाता है उसके बाद आप क्लिक करेंगे रन स्कैन बटन पे टू स्कैन ऑल द ड्राइव्स ऑफ योर कंप्यूटर। इसके बाद आप स्कैनिंग का स्टेटस देखेंगे। जब आपकी स्कैनिंग फिनिश हो जाएगी तो आपके सामने वहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनी हुई होगी जहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि नो वायरस फाउंड और वायरस इज फाउंड। इस तरह के आपके विंडोज़ जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा इसका मतलब आपके जो फुल स्कैन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप क्रॉस बटन पे क्लिक करके इससे आप बाहर आ सकते हैं। अब आपको एंटीवायरस जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इसको आपको डे टू डे अप टू डेट रखना होता है सो दैट ये न्यू वायरस को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। Now remember, you can also scan a drive file folder for viruses by right-clicking on it and then selecting the Scan with Kaspersky option. अब आप अपनी फाइल को भी, आप पूरे कंप्यूटर की जगह कोई फाइल आपको ऐसे लगती है सस्पिशियस तो आप उस फाइल को, फोल्डर को भी इंडिविजुअली स्कैन कर सकते हैं अपने एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू। Let us rewind. A computer virus is a program that disrupts the normal operation of a computer. A computer virus is able to replicate itself. A virus stands for vital information resource under siege. A computer virus can't infect a computer hardware. It can only infect computer software. There are many types of viruses and different people may describe them in different ways. Viruses can spread through removable media, downloaded files and email attachments. A few signs indicates the presence of a virus in our computer. The most common and useful means to protect your computer from a virus is to use an antivirus software. An antivirus software is an application program which is designed to detect and remove viruses from the computer system. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.